Welcome to the Cineverse to join the universe of cinema with Kudesh Agrawal. In this episode, this is episode number 7, we will talk about the story outline and the dramatic progression. Of course, when it comes to the films, we look for the drama. When it comes to the films, we look for the story. So the first story outline, we talk about scenes and plot. What is scene? Imagine I wanted to show that my character is having an amazing, beautiful house party. How will I show? I'll show while my actor, like maybe first shot where I am taking people are entering in my house. Second shot, I'll see where there's a beautiful decoration in the house. Third, the chef and the house people are doing a lot of preparation in the kitchen for the guest. Fifth, everybody is entering, people are greeting each other and having fun. Sixth, everybody is watching some film, maybe dancing. Seventh, people are just having food and interacting and a lot of noise around it. What is this? This is all one scene which is narrating that there is some party happening. Agreed? So that is called scenes. So in the film, there are various scenes. Scene number 1, a character is waking up. Scene number 2, the character is going out for a work. Scene number 3, the character is coming back to the family. Scene number 4, the character is going out with the family, dinner or hosting a party. Scene number 7 can be a courtroom also. Scene number 8 can be a person is going for the work, etc, etc, right? So while doing this, we have to remember that every scene should has that depth with the action and the dialogues. That is a job of the writer. So that is one thing. In the same script outline or the story outline, we have sequences. So when you wanted to have a proper story narration, then you have different scenes, right? You connect different scenes, scene of outing, scene of garden, scene of party, and scene of office, that to show a perfect person, that okay, this person is absolutely amazing with the social life, with the house life, with a corporate life, with a personal life, and then you create different scenes for that and you club them all together and make one. That is called sequence. Okay, coming to the next point, plot point. As we took an example of DDLJ earlier, to DDLJ में जब शाहरुख खान और सिमरन का पिताजी उनका इंटरेक्शन जब होता है, दैट इज द फर्स्ट मेजर इवेंट, तो वो एक एलिमेंट है. सेकंड, जब अमरीश पुरी को पता चलता है कि यही वो लड़का है जो यूरोप में था, दैट इज द अनदर प्लॉट पॉइंट. तो जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं, अगर हम रामायण की बात करते हैं तो जब राम एंड सीता का स्वयंवर होता है, या जब सीता को रावण ले जाता है, या जब राम रावण के साथ लड़ाई करता है, दीज आर द मेजर इवेंट्स इन द स्टोरी एंड दीज आर द प्लॉट पॉइंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ऑडियंस को कैच रखने के लिए, ऑडियंस को आपके साथ जोड़ के रखने के लिए. अदरवाइज आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ अपना इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू करेंगे. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कहीं पे भी देखें, चाहे वो टीवी सीरियल्स में देखें, हर एक स्टोरी के बाद देयर इज सम प्लॉट पॉइंट, देयर इज सम मेजर इवेंट्स व्हिच इज हैपनिंग. सो दैट इज अबाउट द स्टोरी आउटलाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, ड्रामेटिक प्रोग्रेशन. Dramatic progression is a very important thing. It is something which gives you the obstacles, which gives you the story progression, which gives you more interesting elements, and we try to sort this for you by dividing them into 4 parts. One is exposition, second is rising action, third is climax, and fourth is falling action. I'm sure 2-3 शब्द तो आपने पहले भी सुने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको रिपीट कर देते हैं. एक्सपोजिशन इज व्हाट? इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर्स एंड द बैकग्राउंड्स एंड द इवेंट्स एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सीरियल्स देखते हैं, कोई भी कहानी देखते हैं, तो हर एक कैरेक्टर की पुरानी कोई कहानी होती है कि वो कहाँ से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड है और कहाँ पे उनकी मुलाकात हुई, जो भी है. सो वो जो मेन चीज़ है वो आपकी कहानी का मेन प्रोग्रेशन है, मेन एक्सपोजिशन है. सेकेंड इज राइजिंग एक्शन.
तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो जैसे मैंने अभी आपको प्लॉट पॉइंट बताया, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो कहानी में कुछ ट्विस्ट डालते हैं, कहानी में कुछ एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स डालते हैं, दीज आर द राइजिंग एक्शन, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राइजिंग एक्शंस आर जो कहानी को आगे इंक्रीज करें और ऑडियंस को अपने साथ बांध के रखें। एंड द थर्ड इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स तो सबने सुना है, जहाँ से कहानी जितने भी सारे मेन एक्शंस बनते हैं और लास्ट में जाकर के जब मेन एक्शन को इतना हाइप कर दें, इतना सीरियस कर दें कि वो हो जाता है आपका क्लाइमेक्स, कि ओ गॉड अब क्या होगा। जब सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आपके हीरो को आ जाए और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है लास्ट में, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। एंड जैसे ही आपका क्लाइमेक्स आएगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स के बाद आइदर सोल्यूशन ही आने वाला है और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जब सारी प्रॉब्लम एक बार में आई गई तो अब क्या आएगा, तो फिर आता है आपका फॉलिंग एक्शन, जहाँ पे आप अपने स्टोरी में चीज़ों को सॉल्व करते हो, रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, नॉर्मल की तरफ जाते हैं। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स, आई रिपीट, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड फॉलिंग एक्शन, जो कि आपकी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है, आपकी कहानी में ड्रामा ऐड करता है, आपकी कहानी को ऑडियंस के लिए क्रेजी बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप ये सब एलिमेंट्स को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी कहानी देखने में लोगों को मज़ा आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अब इसके बाद मुझे लगता है हमें कहानी लिखी लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी कहानियों के बारे में बता दिया है। तो यहाँ तक हमने आपको सब मेजर एलिमेंट बता दिए, किस तरीके से कहानी को 3x स्ट्रक्चर में लिखा जाए, किस तरीके से कहानी को आप कहानी का आउटलाइन बना सकते हैं, किस तरीके से आप उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट डाल सकते हैं, किस तरीके से उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप सबको एक कहानी लिखनी है, एंड कहानी के बाद आगे आपको बताया जाएगा किस तरीके से उसको स्क्रीन प्ले में बदलना है। ऑल द वेरी बेस्ट।